ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ وہ اپنی فوج کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا، اور کیا ہوا کہ جنگ لڑتے لڑتے اسے یہ محسوس ہوا کہ اس کی فوج جو اس کے ساتھ لڑ رہی ہے وہ تمام فوجی جو ہیں، آرمی کے لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے میدان چھوڑا، اور میدان چھوڑ کر وہ ایک غار میں جا کر چھپ گیا، کیو میں، غار میں جا کر چھپ گیا، اور غار میں چھپا ہوا وہ لیٹا تھا، اور اس کی نظر غار کی جانب تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک مکڑی، اسپائڈر جو ہے وہ جالا بننے کے لیے اوپر جاتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے، پھر وہ اوپر جاتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے، اور بادشاہ بڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا، اور کوئی آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ مکڑی اس بات کی کوشش کرتی رہی، اور کوشش کرتے کرتے آخر کار اس نے نیچے سے اوپر تک جال بن لیا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو اسے خیال آیا کہ میں نے تو ابھی میری بہت ساری فوج میرے ساتھ ہے، ابھی آرمی کے بہت سارے لوگ میرے ساتھ ہیں، میں تو پہلے ہی ہار مان کر بیٹھ گیا ہوں۔ اس نے اس مکڑی سے اور اس کے واقعے سے اس بات کو سیکھا کہ مجھے محنت کرنی ہے۔ اور آج میرے عزیزوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایماندار ہوتے ہوئے جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، مسیح یسوع کو قبول کر لینے کے بعد، مسیح یسوع پر ایمان لانے کے بعد جب ہم سے غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے، تو ہم بجائے کہ اس گناہ پر پشیمان ہوں، بجائے اس کے کہ ہم اس گناہ کے لیے پریشان ہوں اور اس گناہ کو ترک کریں، ہم خداوند سے دور چلے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، خداوند جب ہماری زندگی میں بے تابی ہوتی ہے، جب ہم ڈیسپریشن میں ہوتے ہیں، تو اس وقت میں خداوند ہمیں بحال کرتا ہے۔ ہمیں خداوند کے کلام میں پطرس رسول کی زندگی اس حوالے سے بڑی اہم ملتی ہے۔ پطرس رسول کے ساتھ ایک اور شاگرد بھی ہے۔ وہ سب کچھ جو پطرس نے کیا، وہ سب کچھ ایک اور شاگرد جو خداوند یسوع مسیح کا ہی شاگرد ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہی اسے چنا، وہ سب کچھ پطرس نے بھی کیا، اور وہ سب کچھ یہودا اسکریوتی نے کیا۔ پطرس وعدہ کر رہا ہے، ایک دفعہ یسوع مسیح نے کہا کہ میرا وقت قریب ہے، میں اپنی جان دوں گا، تو پطرس نے کہا خداوند ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس نے وعدہ کیا کہ خداوند میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن جب گواہی دینے کی بات آئی تو گناہ اس کی زندگی میں گھر کر گیا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کا 3 بار انکار کر دیا۔ اور ایسے ہی ہم یہودا اسکریوتی کو بھی دیکھتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے 30 سکے لیے اور یسوع مسیح کی قیمت لگائی۔ میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہودا اسکریوتی نے یسوع مسیح کی قیمت نہیں لگائی، اور یسوع کی قیمت کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ اصل میں 30 سکے اس کی اپنی قیمت تھی، جس کے عوض اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا تاکہ وہ یسوع مسیح کو پکڑوائے۔ لیکن پطرس اور یہودا اسکریوتی کی زندگی میں جو ہمیں واضح فرق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسکریوتی جب اس سے غلطی ہوئی، جب اسے پتا چلا، کلام میں لکھا کہ وہ گیا، اس نے وہ سکے پکڑے اور جا کر کاہنوں کو دیے، اور انہیں کہا کہ یہ واپس لے لو، مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو کاہنوں نے وہ سکے واپس نہیں لیے، اور کلام میں لکھا کہ وہ وہیں پر پھینک کر چلا گیا، اور جا کر اس نے پھانسی لے لی، اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ پطرس سے بھی غلطی ہوئی، اور کلام میں لکھا کہ جب مرغ نے بانگ دی 3 بار اس نے یسوع مسیح کا انکار کیا، تو پاک کلام میں لکھا کہ وہ باہر جا کر کیا کرنے لگا؟ زار زار رونے لگا۔ اس کے آنسو، اس کا پچھتاوا وہ اسے اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرے۔ جب ہماری زندگی میں بے تابی ہوتی ہے، جب ہم پریشانی سے بھرے ہوتے ہیں، اکثر اوقات پریشانیاں اس قدر زیادہ آتی ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید خداوند بھی ہمیں چھوڑ گیا ہے۔ یاد رکھیں، جب پطرس نے اس گناہ کیا، اس کی زندگی میں یہ گناہ ہوا، تو وہ پچھتایا، اسکریوتی بھی پچھتایا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی۔ پطرس پچھتایا، اس نے توبہ کی، اور وہ بحال ہوا، اور اس کی بحالی ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اور اس کے 19ویں باب کے اندر، کہ خداوند یسوع مسیح نے پھر اسے یہ خدمت سونپی کہ تو میرے برے چرا، تو میرے برے چرا۔ پہلے اسے کہا کہ تو آدم گیر ہے، اب اس کی ذمہ داری اور بڑھا دی، اور وہ یہ کہ تو میرے برے چرا۔ اور کلام مقدس میں، اعمال کی کتاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے دلیری کے ساتھ کھڑے ہو کر عید پینتیکوس کے دن
योएल नबी के सहीफा में से वो सब कुछ जो उस जगह पर हो रहा था, उसने उस पेशन गोई को वाजे किया और बताया कि ये सब कुछ खुदावंद के कलाम के मुताबिक है कि तुम्हारे जवान और तुम्हें बुढ़े देंगे। आज वो सब कुछ हो रहा है। पतरस ने जब ये सब कुछ किया, ये जिक्र है, हमें इस बात के बारे में पता चलता है कि ऐसा करने से बहाली के ऊपर एक मोहर हुई। अस्करियोती, यहूदा अस्करियोती पछताया जरूर, पर उसने तौबा नहीं की। पतरस पछता उस तौबा की बहार। आज बहुत सारे लोग, गुनाह जिंदगी में होता रहता है, गुनाह या गलती हो पर पछताते नहीं। याद है दारुल कुद्स जो हमारी जिंदगी में है, वो हमारा उस्ताद है, वो हमें सिखाता रहता, वो हमें बताता रहता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा, लेकिन हम पछताते तो है, तौबा नहीं करते। हम उस काम को अपनी जिंदगी में खत्म नहीं करना चाहते, इसलिए हमारी जिंदगी में बहाली नहीं आती। आज बहुत सारे ईमानदार हैं आप अपने आसपास देखें, शायद आपके घर में, आपके काम की जगह पर ऐसे ईमानदार हो जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया, वो बपतिस्मा याफ्ता हैं, वो दुआ भी करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में बहाली अभी तक नहीं आई। याद रखें, बपतिस्मा लेना ये हमारी अंदरूनी तब्दीली का बैरूनी इजहार है। अगर हम अंदर से तब्दील हो, बहुत सारे लोग क्या कर बपतिस्मा तो लेते हैं, खादमीन क्या वो पूरे होते हैं। ये याद है कि सिर्फ खुरूस के वसीला से होती है। कोई आज भी पास से खड़ा कलाम सुनाए, से कहे कि साहब का कलाम सुनाए, तो आप अपना खुद लेंगे, हम खुदा के अपने आप ही करें, हम बहाल गए। मुकाशवा एक मैं हुआ क्या हूं, नौ की खटखटा, खुदावंद यीशु मसीह खटखटाते हैं, लेकिन अब इसके बारे में लिखा है कि वो चोर की तरह है, वो चोर की तरह आ जाता है। यीशु मसीह ये चाहते हैं कि अगर कोई बहाल होना चाहता है तो वो उसे अपनी जिंदगी में आने की दावत दे। जब तक यीशु हमारी जिंदगी में नहीं होगा, जब तक वो हमारी जिंदगी में नहीं होगा, हम बहाल नहीं होंगे। और आज बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हैं जिनमें यीशु की जगह कम है और दूसरों की जगह ज्यादा है। सबसे पहली बात जिस पर हम गौर करेंगे कि हमें गुनाह के बाद, जब भी गुनाह होता है, याद रखिए यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी बात की। पतरस ने कहा कि अगर मेरा भाई गुनाह करता है, वो कोई ऐसी बात करता है, तो मैं उसे एक गुनाह के लिए कितनी बार माफ करूं? तो यीशु मसीह ने कहा एक गुनाह के लिए 70 बार। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि 70 बार माफ कर दिया तो 71वीं बार माफ नहीं करना। इसका मतलब है कि माफी है तो अनलिमिटेड है। अगर खुदावंद यीशु मसीह ये बात कर रहे हैं तो उसका मकसद ये है कि अगर हमसे गलती या गुनाह हो जाता है तो खुदावंद के पास हमारे लिए जो माफी है वो अनलिमिटेड है। एक गुनाह के लिए 2 बार हो, 3 बार हो, हम उस गुनाह के लिए माफी मांग सकते हैं और वो हमें बहाल कर सकता है। लेकिन उसमें यह शर्त भी मौजूद है कि अगर हमने सीख लिया, अगर हमने जान लिया, अगर हमें पता है कि यह गलती मैंने पहले की थी और मैंने इसके लिए माफी मांगी और माफी मांग कर कहा कि खुदावंद अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, और फिर हम वहां पर उसी गुनाह को दोबारा करते हैं, तो कलाम में बड़ी सख्त बात लिखी है। उसके लिए लिखा है कि कुत्ता जैसे अपनी कैद की तरफ और नहलाई हुई सूरनी दलदल की जानिब जाती है, ऐसा ही उस ईमानदार का या उस शख्स का हाल है। हमें गुनाह के बाद ये यकीन है कि अगर गलती या गुनाह एक ईमानदार होते हुए हमारी जिंदगी में हो जाता है या हो गया है, तो खुदावंद हमें बहाल कर सकता है। मेरे साथ एक हवाला देखिएगा, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। पतरस रसूल का पहला आम खत और उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत हम लोग के पाक कलाम में से देखें। पतरस 2 बाब और 9वीं आयत, लेकिन तुम एक बरगदा का कौम और ऐसी उम्मत जो खास नियत करो, इसने तुम्हें अपनी में बुलाया। अगर हमारी जिम्मेदारी हो गया ना तो ये हमें बलता है और हमें बाहर कि खुदा इस्तेमाल किया जाता कि चाहे कि तौबा तक नौबत पहुंच। बिशप साहब ये कहते हैं खुदावंद तो ये, लेकिन इब्लीस क्या चाहता है? किसी तौबत ना बल। और जब हम सल्त गुनता है, हमें इस बात है की जानकारी लाने कि दूर के नहीं होगी तुम गई ये गुनाह भी, और वो ये जो बाम उसने किया है शकी भी नहीं। यीशु ने मसीह के दुखों को देखा, यीशु पकड़ के और जब उसने आपको दे दिया, आपको हैंग कर दिया हमारे, लेकिन बस यू दुख देखता रहा,
اور جب اس نے دیکھا اور وہ سب ہیں اس کی زندگی میں اس ایک ہی سلیب یسوع نے بہا پائے. اگر ہم سے غلطی نہ ہے تو یہ وہ اپنی زندگی میں رکھیں. دوسری نے صرف کہ انوار اس معافی میں اس ہرگز وہ شخص جب نہیں اپنے اور میں جاتے نہیں کہ وہ ہیں لیکن ان کی زندگی چلتے ہیں. اسی نے ان کہا تھا اے باپ کو مگر ہمیں یہ چاہیے اگر ہم غلطی یا گناہ سرزد ہوا تو ہمیں معافی مل سکتی. خداوند ہمیں کر سکتا ہے. مقدس میں ہرگز بھی ایسی تعلیم نہیں کہ اگر بیٹا گناہ دیتا تو اسے معافی نہیں ملے. مصرف بیٹے کہانی بڑا خط ملتا ہے. جب وہ سب باپ کا سچ اٹھ کر آیا تو کلام میں کہا ہے کہ باپ اس کے انتظام میں اپنی بک کھولے کھڑا. بیٹا آ کر کہتا ہے کہ باپ میں اب اس قابل نہیں رہا کہ میں تیرا بیٹا ہوں, مجھے کیا کر اپنے نوکروں کا رکھ لے. تو اپنے اسے نوکر نہیں بنایا, اسے کی یہ نہیں کہا کہ تو نے سب کچھ جو میرا حصہ جو تیرا حصہ تھا جو باپ دادا کی جائے تھی تو نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا, اب تو واپس کیوں آئے. کلام میں لکھا ہے کہ باپ نے کوئی بھی ایک نہیں کی. بیٹا بڑے منصوبے کرا رہا تھا کہ میں آؤں گا کہوں گا میں اب قابل نہیں رہا, لیکن باپ نے اسے ایک بھی بات نہیں کی. اس کے لیے شاخ بنائی, اس کے لیے اٹھی مار کی اور کہ میرا بیٹا ماں تھا یہ سب ہے یہ جو ہو گیا یہ میں یہ سال یہ تمثیل بتایا کہ اگر ہماری زندگی میں غلطی یا گناہ خداوند کے ہوتے ہوئے اندر ہوتے ہوئے ہو جاتا ہے, خداوند کے پاس ہمارے لیے معافی کی گنجائش موجود ہے. یہ تعلیم کہ ہو گیا تو اب آپ بحال نہیں ہو سکتے, یہ تعلیم بائبل کی تعلیم نہیں ہے. اگر خداوند ہمیں بحال کر دیتا ضرور ہے کہ بحال ہونے کے بعد ہم احسان بھی کریں اس سے خداوند ہم کو جلال میں. اکثر ہم اندر ہوتے ہیں, ہم بخشدہ ہوتے ہیں, ہو تو روحانی ہے کام ہمارے جسمانی ہیں, اور ہم یہ سوچیں کہ ہر وقت تو میں دعا کر سکتا. دنیا گھومتے پھرتے ہم ایسے لفظ کو اپناتے ہیں, ہم ایسی زبان اپنا لیتے, ہم منجا کردار اپنا لیتے. بڑی آج کل چیزیں میں سن رہی ہیں مسیح بھی طلاق اس کو چند کو اختیار کا رجحان وہ چاہے کیا حال ہے تو پتہ ہی نہیں کہ بہار کے بعد ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے. اگر فضل ہو خداوند فضل کیا ہے تم نے اس کو بیکار کرنا. آج بہت سارے خداوند کے فضل کو بیکار کر رہے ہیں, اور کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابلیس ان سے ایسے کام کرواتا ہے. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے گا, فرسٹ تھیسالونینس چیپٹر 6 فرسٹ تھیسالونینس چیپٹر 6 ورس 16 to 22. پہلا تسالونیکیوں 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے 22ویں آیت تک خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے. پہلا تسالونیکیوں 5واں باب جی پہلا تسالونیکیوں اس کا 5واں باب. ہر وقت خوش رہو جی بلا دعا کرو اور ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. جی آگے بھی پڑھ دیں. روح کو نہ بجھنے دو, نبوتوں کی حقارت نہ کرو, سب باتوں کو آزماؤ, جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو, ہر قسم کی بدی سے بچے رہو. ٹھیک ہے, جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے گا, اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں. آمین آمین. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم بہت ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں خوش رہنا ہے. شادمانی, نجات کی شادمانی ہمارے چہرے سے نظر چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں ایماندار ہوتے ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہوتے, ہر وقت پریشانیاں, ہر وقت خدا سے گلے شکوے, ماضی کی باتیں. یاد رکھیں خداوند ہمیں مستقبل کی جانب لے کر جاتا ہے. یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا, میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. فیوچر کی بات, مستقبل کی بات, نجات آدمانی کی یسوع کی. ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں پیچھے لے کر جاتا ہے. تم ایک شرابی سے, تمہاری زندگی اچھی نہیں تھی, تم نے اپنی پرانی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے, اب تم کیسے کھڑے ہو کر دعا کر سکتے ہو؟ یاد رکھیں جب ہم بحال ہوتے ہیں اور ہمیں بحالی پر یقین ہے تو ہمیں بحال ہونے کے بعد اپنی زندگی میں نجات کی شادمانی کو بھی اپنانا ہے. بہت سارے لوگ جب بھی ان سے ملے کیسی زندگی چل رہی ہے, کیا آپ کی زندگی اچھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی پریشانیاں ہی ہماری جان نہیں چھوڑتی.
बेशक जब तक हम जिंदा हैं ये परेशानियां, ये दुख तकलीफ हमारे साथ रहेंगी। पालूस रसूल खुदावंद के कलाम में जब हम उसकी बात करते हैं तो पालूस रसूल की जिंदगी में वो ये कहता है कि मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया। उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना था, उससे बहुत सारी तकलीफ का सामना था, और उसकी नजर कमजोर थी, उसको चलने में परेशानी होती थी, और उसके मैदा की जो परेशानी है वो उसे खिदमत करने में रुकावट का बायस बनती थी। वो कहता मैंने खुदावंद से बड़ी दफा कहा, लेकिन खुदावंद ने उससे क्या कहा, मेरा फजल तेरे लिए क्या है, निजात की शादमान जब हमारी जिंदगी में होती है तो हम कमियों में और कमजोरियों में भी ये कहने वाले होते हैं क्या है, खुदावंद मैं कुछ भी नहीं, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। निजात की शादमानी हमारी जिंदगी में होना, यानी हर वक्त खुश होना, ये हमारे लिए बड़ा अहम है। दूसरी बात यह कि जब हम बहाल हुए हैं या हम ईमानदार हैं, मसीह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो दूसरा काम जो हमारी जिंदगी में होना चाहिए वो ये कि हम बिला नागा दुआ करें। बिला नागा का मतलब है बगैर रुके हुए। बहुत सारे लोग जब वो जिंदगी में कुछ परेशान होते हैं, तकलीफें आती हैं, तो वो उस वक्त में बड़ी दुआ करना शुरू कर देते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स, पंजाबी समझते हैं सब लोग, एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स वो एक नहर के किनारे सफर कर रहा था, और सफर करते करते उसका पांव फिसला और वो नहर के अंदर गिर गया। तो नहर में गिरकर उसने हाथ पांव मारने शुरू किए और साथ दुआ करनी शुरू किया है, खुदावन अगर तू मुझे आज बचा ले तो मैं बाहर निकल कर ना तेरे नाम पर लोगों को खाना खिलाऊंगा, देगे बांटूंगा। देगे हमारा कल्चर है, कुछ शुक्रगुजारी हो तो देगे बांटते। तो वो गिर गया, हाथ पांव मारे और देगे बांटने का वादा कर चुका, और आहिस्ता आहिस्ता उसका हाथ किनारे पर पड़ा, बाहर आया, कपड़े झाड़े और पंजाबी में कहता केड़ियां देख, पांव फिरा वो पानी में गया। तो पानी में गिरकर क्या खुदाया, गिरकर कहता है खुदाया मैं तो पूछे सी केड़ियां मिठियां के लूड़ियां। तो अक्सर औकात जब हम बहाल होते हैं और हमारी जिंदगी में बहाली होती है तो हम दुआ करते हैं, और कब करते हैं, जब हम फंसे होते हैं, हम परेशान होते हैं। इसीलिए जब बहाली हमारी जिंदगी में होती है और हम दुआ कभी कभी करते हैं तो फिर दोबारा बहाली से हम बेताबी की जानिब चले जाते हैं, हमारी जिंदगी में दुख आ जाते हैं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है खुदावंद के कलाम में कि वो अपने बाप से हर वक्त दुआ करता, कभी वो अपने शागिर्दों को दूर भेज देता, कभी भी अपने शागिर्दों को छोड़कर चला जाता। और जब हम बागे गतसमनी में देखते हैं, जान करने की हालत में यीशु मसीह बाप से क्या दुआ करते हैं, क्या बाप अगर हो सके तो ये प्याला क्या हो मुझसे, लेकिन चूंकि दुआ कर रहे हैं, बाप के साथ रफाकत है, वो ये जानते हैं कि बाप ने मुझे इस मकसद के लिए भेजा है। साथ में ये भी कहते हैं कि बाप मेरी नहीं बल्कि किसकी मर्जी पूरी हो। हमारा रवैया क्या है, खुदा से कुछ मांगा, 40 रोजे रखे, दुआएं की, 1.5 महीने बाद कुछ मिला नहीं तो दुआ करना छोड़ देते हैं। अपना कोई प्यारा अजीज मर जाए और खुदा ना खासा कोई नागहानी मौत आ जाए तो हम कहते हैं खुदा ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया, क्या हम ही इस बात के लिए रह गए थे। ये बात हमारी जिंदगी में कब आती है, जब हम दुआ नहीं करते। बहाली के बाद जरूरी है पहली बात यह कि निजात की शादमानी हमारी जिंदगी में हो। कोई भी पूछे तो हमारा जवाब एक अच्छा जवाब हो कि मैं बाबरकत हूं, मैं खुश हूं, मेरी जिंदगी में बरकत है। और दूसरी बात यह कि हम दुआ करें, और तीसरी बात यह कि हम शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी आज जिंदगियों में बड़ी कम होती जा रही है, इतनी कम होती जा रही है कि हम बड़ी चीजों के लिए तो शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें जो हर रोज हमारी जिंदगी में हो रही होती हैं हम उन्हें भूल जाते हैं। अगर पिछले दिनों में कोविड रहा और बहुत सारे लोग जिनको इसका सामना करना पड़ा, हमारे मोहतरम बिशप साहब, उनको भी 2021 में पिछले साल कोविड का सामना करना पड़ा, और हर रोज ऑक्सीजन बड़े बड़े सिलेंडर लगते थे। मैं भी, हम सब लोग उनके साथ रहे। अगर हम सिर्फ सांस की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो हम गिन नहीं सकते कि पता नहीं रोज के हम कितने सिलेंडर जो है उनको इस्तेमाल कर जाते हैं। ये शुक्रगुजारी है अगर हमें करनी है। बहुत सारे लोग हैं वो बिस्तर पर सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं, पांव नीचे नहीं लगते, वो सोए हुए ही इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये शुक्रगुजारी है। अगर हमारे पास हमारी फैमिली है, हम अगर रात का खाना खाकर सोते हैं, सुबह के वक्त हमारे पास खाने के लिए मौजूद है, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए हमारे पास सब कुछ मौजूद है, तो ये शुक्रगुजारी है। अगर खुदावंद ने हमें बहाल किया है तो हमें खुश होना है, हमें दुआ करनी है और हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। और ये सब कुछ क्यों करना है, पौलुस रसूल ये कहते हैं क्योंकि
मसीह यस्सु में खुदा की मर्जी ही ये है, और खुदा की मर्जी कोई नहीं। अच्छी बात है आप हदिया दें, अच्छी बात है आप ऑफरिंग दें, अच्छी बात है कि आप गरीबों में खाना बांटे, लेकिन अगर हमारा ताल्लुक खुदावंद के साथ अच्छा नहीं, अगर हम अपने खुदावंद के शुक्रगुजार नहीं, अगर हम दुआ में उसके साथ ताल्लुक मजबूत रखे हुए नहीं और शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी में नहीं, तो खुदा की बाकी कोई भी मर्जी नहीं, सिर्फ ये मर्जी है कि ये चीजें हमारी जिंदगी में हो। इब्लीस हमेशा हमें माजी की तरफ लेकर जाता है और वो ये कहता है कि तूने जिस जगह से मसीह को कबूल किया उससे पहले तेरी जिंदगी कैसी थी। हम भी इंसान होते हुए, अगर कोई चर्च में ऐसा शख्स आ जाए जिसकी जिंदगी बुरी थी, इंसान होते हुए अक्सर हम उसकी जिंदगी को डिस्कस करते हैं, कितना बुरा शख्स था, कैसे ये बहाल हो गया, अब तो इसकी दुआएं ही बड़ी अच्छी हो गई हैं। लेकिन ये वो शख्स जानता है जिसे खुदावन ने बहाल किया, और खुदावन चूंकि हर एक से मोहब्बत करता है। याद रखें, जब भी हम खुदावन में चलना शुरू करते हैं, जब भी हम खुदावन में चलते हैं, इब्लीस हमें माजी की तरफ लेकर जाता है। यहूदा अस्करियोती ने जो कुछ किया वो ये समझ रहा था कि ये माफी वाली बात ही नहीं, मैंने यीशु को 30 सिक्के लेकर बेच दिया है, मैंने उसका बोसा ले लिया है, पता नहीं अब यीशु क्या करेगा। और ये सब कुछ पतरस भी कर रहा था। और याद रखें कि जब हम बहाल होते हैं या बहाली हमारी जिंदगी में आती है, तो दूसरी तरफ इब्लीस भी उतना ही जोर लगा रहा होता है ताकि ये बहाली जो जिंदगी में आई है ये जिंदगी में कायम ना रहे। जब हम बहाल होते हैं तो हमारी जिंदगी में खुशी होनी चाहिए, और जब खुशी हमारी जिंदगी में आती है तो ये खुशी इब्लीस को हमारी जिंदगी से दूर कर जाती है। निजात की शादमानी, हमें इब्तदाई कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। अगर हम वो किताबें जो इब्तदाई कलीसिया पर लिखी गई हैं हम उनका जिक्र पढ़ें तो ईमानदारों को आरों से चीरा गया, उनके बच्चों को उनके सामने, उनकी आंखों के सामने तेल के जलते कड़ाहों में डाल दिया गया। उन्होंने यीशु का नाम लेने के बारे में कहा कि हम उसका इनकार नहीं करेंगे। स्तिफनस जो पहला शहीद है, वो जब शहीद हो रहा है तो वो ये कहता है कि मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूं और इब्ने आदम को बाप की दानी तरफ खड़ा हुआ देखता हूं। और कलाम में लिखा है कि वो लोग स्तिफनस को पत्थर मारते जा रहे हैं, लेकिन पत्थर खाकर भी ना तो वो बुरी बात कर रहा है ना वो यीशु का इनकार कर रहा है, क्योंकि उसे ये पता था कि जिस जगह पर अब मैं जाने वाला हूं वो जगह यीशु ने मेरे लिए तैयार की है। आज बहुत सारे लोग हैं जब वो बहाल होते हैं गैर कौमों के सामने होकर, जब गवाही देने की बात आती है तो गवाही देते हुए हम हिचकिचाते और डरते हैं। हम नाम हमारा क्रिश्चियन हो तो शायद हम कुछ मिक्स नाम बनाकर बता देते कि जी मेरा नाम ये है। अगर हम बहाल हुए हैं तो बहाल होने के बाद हमारी जिंदगी में निजात की शादमानी और दुआया जिंदगी और शुक्रगुजारी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम इस बहाली में हमेशा मौजूद रहेंगे। अगर ये तीन चीजें हमारी जिंदगी में नहीं होंगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बहाली से फिर बेताबी की जानिब चले जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं खादमीन होते हुए हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, वो ये कहते हैं मैंने बपतिस्मा भी ले लिया, मैं होली कम्युनियन में भी आता हूं, मैं 5 शराकत भी लेता हूं, मुझे अपनी निजात के बारे में अभी तक डाउट है। और डाउट क्यों होता है? क्योंकि हमारा खुदा के साथ ताल्लुक नहीं होता। अगर हमारा खुदा के साथ ताल्लुक है तो हम कभी भी अपनी निजात के बारे में डाउटेड नहीं होंगे, बल्कि हमें ये यकीन होगा कि ये दुख, ये तकलीफें, ये परेशानियां इस दुनिया की हैं, मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मैंने आसमान पर चला जाना है। याद रखिए, ईमानदार की सारी बरकतें जो हैं वो आसमान पर हैं। हाँ, दुनिया में रहते हुए बहुत सारी बरकतें हैं, हम कलाम में पढ़ते हैं, लेकिन जो हकीकी बरकत एक ईमानदार के लिए है वो आसमान पर है। तीसरी बात और आखिरी बात जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि अगर हम बहाल हुए हैं, हमारी जिंदगी में बहाली आई, हमने गुनाह को छोड़ा, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमारे गुनाह माफ हुए, तो हमें क्या करना है? मेरे साथ हवाला देखिएगा, पौलुस रसूल का गलतियों के नाम खत, उसका 5वां बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत। पौलुस रसूल का गलतियों के नाम खत और उसका 5वां बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है 5वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में, ऐ भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है,
यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। बहाल शख्स का रवैया जिसे खुदावन ने बहाल किया यह होना चाहिए कि वो दूसरों को भी माफ करे। अगर खुदावन ने माफ किया है तो हमने भी माफ करना है। हम इतनी लंबी लड़ाइयां और झगड़े लेकर चले जाते हैं कि नस्लें जो हैं वो तबाह हो जाती हैं। हम देखते हैं हमारे मुआशरे में, यहां पर तो बड़ा अच्छा माहौल है, हम आते हैं, काम करते हैं, कोई किसी को लेना, लेकिन जब हम अपने मुआशरे में वापस जाते हैं तो वही लोग जिनके साथ हमारी 5 साल पुरानी लड़ाई है, हम वहां पर जाकर वैसे ही उनके घर नहीं जाते। हम ये कहते हैं मैंने माफ तो कर दिया, मैंने बोलना नहीं इसके साथ। ये कैसी बहाली है? क्या ऐसा खुदावंद हमें बहाल करता है? खुदावंद ये चाहता है, कलाम में लिखा है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अक्सर हम रूहानी होकर जिस्मानी रवैयों को अपना लेते हैं। हम बहाल होते हैं, खुदावंद हमें बहाल कर देता है, लेकिन रवैया हमारा जिस्मानी होता है, हम माफ नहीं कर पाते। माफ ना करना ये बहाल ना होने की एक अलामत है। जिस पर फजल हुआ है वो दूसरों पर भी फजल करता है, जिसके गुनाह माफ हुए हैं वो दूसरों को भी माफ करता है, और जिसके गुनाह खुदावंद ने माफ किए हैं उसकी जिंदगी में दूसरों के लिए डर और खौफ आता है। किसी दूसरे को बहाल करना मोहब्बत के बगैर मुमकिन नहीं। जब तक हमारे दिल में किसी के लिए प्यार नहीं होगा ना, तब तक हम किसी को बहाल नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते। और ये प्यार कब आता है? जब यीशु हमारी जिंदगी में आता है। और जब यीशु जिंदगी में आता है तो फिर वो ये कहता है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। जब उसने, वो कहता है कि गाली, उसने गाली नहीं दी। ये साया बाब हम उसमें ये देखते हैं कि जब भेड़ को ज़बह करने के लिए ले जाते हैं, वो उसे ले गए, उसके मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकली। यीशु मसीह का तर्ज़े जिंदगी, उसका मिजाज जब हमारी जिंदगी में होगा तो हम दूसरों को भी माफ करने वाले होंगे। अगर हमें माफ किया गया है, खुदावंद हमसे प्यार करता है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम भी दूसरों से प्यार करें। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम ये देखते हैं कि जब नाइन शहर की बेवा का इकलौता बेटा, बेवा थी, एक ही बेटा था, वही उसका सब कुछ था, जब वो मर गया, यीशु मसीह कफरनहूम में था, एक दूसरे शहर में था, लेकिन लोगों को नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह चलकर वो नाइन शहर के फाटक तक पहुंचा, और जाकर उसने उस बेवा को जब रोते हुए देखा तो उसने उस बेवा के बेटे को जिंदा किया। क्यों जिंदा किया? क्योंकि वो उससे प्यार करता था। हालांकि यीशु मसीह नाइन शहर के अंदर नहीं, कलाम में लिखा कि वो कफरनहूम में है, लेकिन वो कफरनहूम से सफर करके एक दूसरे शहर में उसके फाटक पर पहुंचा, जहां पर उस बेवा के अकलौते बेटे को, उसकी लाश को लेकर जा रहे थे ताकि उसे दफना दें। यीशु मसीह उस तक पहुंचा क्योंकि यीशु मसीह लोगों से प्यार करता था। आज हमें भी दूसरों से प्यार करने की जरूरत है ताकि हमारी बहाली का रवैया लोगों पर जाहिर हो। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। शरीयत भी यही बता रही है, यीशु मसीह ने भी कहा। और हम इस खत में, गलतियों के खत में, उसकी 14वीं आयत में भी ये देखते हैं कि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। और पड़ोसी हरगिज वो शख्स नहीं जो हमारी घर की दीवार के साथ जिसका घर है, बल्कि पड़ोसी हर वो शख्स है जिसके साथ हमारा ताल्लुक है। हर रोज की जिंदगी में हमें बहुत सारे ऐसे मामला का सामना करना पड़ता है जब कोई शख्स हमें शायद जल्दी में वो आगे निकल जाता है और हम उससे बुरा भला कहते हैं, शायद हम उससे माफ नहीं कर पाते। माफी का रवैया हमें हर रोज अपनाने की जरूरत है। हमें हर रोज दूसरों को बहाल करने की जरूरत है। ऐसा करने से ही हमारा ये रवैया, मसीह का नूर हमारी जिंदगी से दूसरों पर जाहिर करेगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। हो हम मसीही और हमारा नूर दूसरों पर जाहिर न हो। अक्सर औकात आप इस मुल्क में रहते हैं, हमारे रवैये, हमारी आदात और हमारी बातें दूसरों पर जाहिर कर देती हैं कि हम कौन हैं और कैसे हैं। याद रखें, बहाली हासिल करने के बाद हमारा रवैया ऐसा अच्छा रवैया होना चाहिए जिससे लोगों पर यह जाहिर हो कि हम जैसे माफ किए गए हैं, हम भी दूसरों को माफ करते हैं। आज हमने 3 बातों को सीखा। पहली बात यह कि अगर हमने गुनाह किया, हम गुनाहनुदा फितरत में है, तो हमें गुनाह के बाद बहाली पर यकीन है। और क्यों यकीन है?
क्योंकि बहुत सारे लोग गलतियां करने के बाद, बहुत सारे लोग गुनाह करने के बाद बहाल हुए, और हमें दाऊद का बंदा ज़बूर 51 में वो अपने गुनाह का इकरार करता हुआ मिलता है, और वो ये कहता है, पंजाबी में बड़ा अच्छे से गाते हैं कि मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई, जब मेरी मां हमारे अंदर है, जब तक हम जिंदा हैं हम आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर गलबा पा रहे हैं और पा लेंगे। लेकिन अगर फिर भी गलतियां गुनाह होता है तो फिर परेशान ना हो, माफी मांगे, शाम के वक्त उसी वक्त बैठ जाए और कहें कि खुदावन मैं तुझसे माफी मांगता हूं कि मुझसे ये गलत हुआ। हमें बहाली पर यकीन है कि हम बहाल होंगे। दूसरी बात जिस पर हमने गौर किया वो ये कि बहाली के बाद हमें खुश रहने, शुक्रगुजारी करने, और अहम बात कि खुदा के साथ राबता रखने की जरूरत है। जैसे ही हमारा राबता खुदा के साथ टूट जाता है, जैसे ही हम खुदा से दूर हो जाते हैं, दुआ में नहीं जाते, नागे आना शुरू हो जाते हैं दुआ में, तो फिर हम बहाली से फिर बेताबी की जानिब चले जाते हैं। तीसरी और आखिरी बात जिस पर हमने गौर किया कि हमारा रवैया वो ये जाहिर करता है कि हम बहाल हुए हैं या नहीं हुए। अगर माफ किए गए हैं तो माफ करें, ताकि ऐसा करने से खुदा का जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर हो। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने सर खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और दुआ करें। और मेरी ये दुखास्त है कि हम सब अपने कदमों पर खड़े हों, और एक दुआ जो मैं आपके साथ मिलकर करना चाहूंगा, और मैं इस दुआ को करने में आपकी रहनुमाई करूंगा। आप इस दुआ को मेरे पीछे दोहराएं। अब अपने हाथ आसमान की जानिब उठाकर इस दुआ को मेरे पीछे कर सकते हैं। प्यारे आसमानी बाप, मैं इकरार करता हूं कि बहुत से लम्हात में मैं अपने भाइयों और बहनों से प्यार करना और उन्हें माफ करना मुश्किल समझता हूं। वो तमाम बातें जो नफरत पर मबनी है और गैर मुहज़्ज़ब हैं, मैं उनका इकरार करता हूं। मेरी मदद कर कि सब पर तेरी मोहब्बत और तेरा फजल जाहिर करूं। ऐ बाप, तू कितना रहीम है कि जब मैं गुनाह की हालत और खुद गर्ज होता हूं, तब तू मुझ पर अपना रहम दिखाता और प्यार दिखाता है। मुझे ये तौफीक बख्श कि मैं गैर मशरू तौर पर उन सबों को जिन्होंने मुझे परेशान किया माफ कर सकूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। तशरीफ रखें, बी सीटेड प्लीज।